ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿನವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವರು. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಪ್ಪ ಕರ್ತ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕರ್ತ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಾ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಕರ್ತ, ಎಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಕೂಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಾನಂತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಪಾಪಿಗಳು, ನೀಚರು, ಅಯೋಗ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿ, ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ವಾಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ರಜ ಈ ಆರಾಧನದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವಂತ ರಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಡಿ ಹರ್ಷಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಬಾ ರಾಜ. ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನನ್ನು ಘನಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಕರ್ತ. ಅಪ್ಪ ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಓದಿ ಅದರಂತೆ ತಿಳಿದು ನಡೆಯುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೌದು ರಾಜ, ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಯ್ಯನವರು ನಿನ್ನ ಕೈಗೊಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕರ್ತ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಆಶ್ವಾಸಿ ಕಾಯ್ದು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೆನ್. ನಮ್ಮ ಇದು ಆರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ 206ನೇ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಳು ನಮ್ಮಯ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು ಯೇಸುವೇ ಹಿಂದೆಯೇ. ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಳು ನಮ್ಮಯ ಮಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆನು ಯೇಸುವೇ ಹಿಂದೆಯೇ. ಕರ್ತನ ಹಿಂದೆಯೇ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಜನರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಸೇವೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತಂತ ಜನರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೇ ನಡೆಸು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಜಯವು ನಮ್ಮದೇ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿರಲಿ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರೇ ಎಂದೆಂದೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ಜಯವು ನಮ್ಮದೇ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮಗಿರಲಿ. ಮಹಿಮೆಯ ದೇವರೇ ಎಂದೆಂದೂ ಸಲ್ಲಲಿ. ದೇವಗೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಳು. ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು, ಆತ ಯೇಸು, ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ದಾವೀದನು ಬರೆದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 27ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 14 ವಚನವರೆಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಇವರು ಓದುವರು. आए हम कुछ बाइबल के वचनों को पढ़ते। भजन संहिता 27वां अध्याय 1 से लेकर 14 तक। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ घट ठहरा है, मैं किसका भय कहूं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे कहा ढलने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध
चवन्नी डाले तो भी मैं न डरूं। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी यहोवा बंदे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी से यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किए करूं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। तब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। यह यहोवा मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसीलिए मेरा मन तुझसे कहता है, यह यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध ना करके ना हट। तू मेरा सहायक बना है, ये मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझसे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। ये यहोवा अपने मार्ग में अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौराहे रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में है, मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जा। यहोवा की बाट जोता रहा, यहोवा बंद और तेरा हृदय दृढ़ रहे है, यहोवा की बाट जोता रहा। ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ ನಾವು ರಾಗಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದೇವರ ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಇಸಾಕನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರ ನಿನಗೆ, ಯಾಕೋಬಿನ ದೇವರ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ. ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ, 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 ಆರಾಧನೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೆಸರಿಡಿದು ನೀ ಕರೆದೆ. ನಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ ಹೃದಯ ತುಂಬ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನಿಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ನಾ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತ ತಂದೆ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಓ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ ನಾನು ಬದುಕಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 आराधने। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सचमुच खुदा परमेश्वर, इस आराधना के द्वारा हम विश्वास करते हैं राजा आप हमसे प्रसन्न है। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमें ये मौका दिया पिता परमेश्वर की आपकी आराधना कर सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, सचमुच खुदा परमेश्वर, लॉर्ड पिता परमेश्वर, हम केवल पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर आवाज जो सुर आपने हमें दिया है उसे केवल और केवल हम आपकी गीत गाकर आपकी महिमा कर पाए, इसलिए आपने हमें चुना है। आपको धन्यवाद देते हैं राजा। सचमुच पिता परमेश्वर, सारे अद्भुत कार्य जो आपने हमारे जीवन में किया, आपको धन्यवाद राजा। अब तक आपने हमें संभाला है, आपको धन्यवाद देते हैं राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आगे के समय को मैं आपके हाथों में देती हूँ राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपके दास के द्वारा जो वचन हम सुनने जाएंगे पिता परमेश्वर, पिता उस वचन से पिता परमेश्वर आप हमें तृप्त करना। लॉर्ड पिता परमेश्वर, वो वचन हमारे जीवन में पिता परमेश्वर एक दोधारी तलवार के रूप में हमारे जीवन में वो कार्य करे पिता, और एक वचन का बीज जो हमारे जीवन में आए पिता परमेश्वर, वो फलदायक को ऐसे कार्य को आप करना। लॉर्ड पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आपके दास को आपके हाथों में देते हुए, आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। ದೇವ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ। ದೇವರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ನನಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನನಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿತ್ತು। ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದೆ। ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ದವಾ ಕೊಟ್ಟರು, ಆರಾಮಾಯ್ತು। ಆರಾಮಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ 2ನೇ ದಿವಸ ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಫುಲ್ ಇದು ಗಂಟ್ಲು ಬ್ಯಾನಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಇದು ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಬಂತು। ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಇದು ಮೊನ್ನೆನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಯಾಕೆ ಆರಾಮಾಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗ್ಲ ಅಂತ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಮಗ ಅವಾಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಿನಗ ಆರಾಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ರು। ನಾನು ಅಂದೆ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟ್ಲು ಬ್ಯಾನಿನೇ ಅನ್ಸಕತ್ತದ ಅಂತ ಅಂದೆ। ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅಂದೆ ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿದೆ। ಆ ಹುಡುಗ ಅಂದ ಇಲ್ಲ ಕರೋನಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗನ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರ ಗಂಟ್ಲು ಬ್ಯಾನಿನಿಂದನೇ ಕರೋನಾ ಅಂತ ಅನಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ಆ ಹುಡುಗ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನನಗ ಒಳಗ್ಲಿಂದ ಭಯ ಅನ್ಸಿತ್ತು। ನಂದ್ ಅವ ಹೇಳಿದ್ದನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ಗ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅದ, ನಾನು ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಗ ಅಂದೆ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಹಿಂಗ ಅನಕತ್ತಿದ್ದ ಆನಂದ್ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ ಅನಕತ್ತಾನ ಅಂತ। ಮತ್ತೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಶೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರು ನಿನಗ ಕರೋನಾతో ಆಗಿಲ್ಲ, ಕರೋನಾನೇ ಅನ್ಸಕತ್ತದ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ನಕತ್ತಿದ್ರು। ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಅಂದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಂದ್ರು ನಾನು ಇದು ಮೆಡಿಕಲ್ದು ದವಾ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದು ತಗೊಂಡು ತಿಂದು ನೋಡು, ಆರಾಮಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೈನಿಗಿನ ಬರ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಿಂದೆ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೈನಿಗೆ ಬರ್ದು ಕೊಟ್ಟಿನಿ, ಇದು ತಿಂದ ಮ್ಯಾಗ ಆರಾಮಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನಿಗೆ ಹೋಗತ್ತ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಕ್ ಹೋದೆ। ಅವ್ರಂದ್ರು ನೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು,
ಹೊರಗ್ಲಿಂದ ಕೊಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ನಕತ್ತಿರ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೊರಗಲಿಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟೆ. ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಆ ರೊಕ್ಕದಕ್ಕ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರು ಅವ್ರ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡ್ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನ್ ತಗೊಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಗೊಲಾರ್ದಂಗ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬರಕತ್ತಿದ್ದೆ. ರೋಡಿಗೆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೆಕ್ಕನ ಕಾಣ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗ ಒಂಥರ ಭಯ ಅನ್ಸಕತ್ತಿತ್ತು, ಒಂಥರ ದುಃಖನ ಅನ್ಸಕತ್ತಿತ್ತು. ಯಪ್ಪ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗಿಂತದು ಹೇಳಕತ್ತಾರ. ನನಗ ಹಂಗ ಏನೂ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ನನಗ ಒಳ್ಳೇದೇ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಪ್ಪ ಅಂತಂದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ನಡ್ಕಂತ ಬರಕತ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಹೋಗಕತ್ತಿದ್ದಳು, ನಾನು ಹಿಂದಲಿಂದ ಬರಕತ್ತಿದ್ದೆ. ನನಗ ಹಿಂದಲಿಂದ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿದಂಗಾಯ್ತು, ನೀನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಅಂತದ. ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಷ್ಟಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕಾಣವಲ್ರು. ಅಷ್ಟು ದೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಒಬ್ಬತ್ತನೇ ಪೊಲೀಸ್ ನಿಂತಿದ್ದ. ಯಾರು ಹಿಂದಲಿಂದ ನನ್ಗೆ ಆವಾಜ್ ಕೊಟ್ರ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ಮ್ಯಾಗ ಯಾರು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರಕತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ನನ್ಗೊಂದು ತರ ಅನ್ಸಿತು, ದೇವ್ರು ನನ್ಗ ಮಾತಾಡಿದಂಗ ಆಯ್ತು. ಭಯ ಪಡಬೇಡ ಒಂಥರ ಆವಾಜ್ ಕೇಳಿಸಿದಂಗಾಯ್ತು. ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗೆ ನೆನ್ಸ್ಕದೆ, ದೇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನೇನ್ ಭಯ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅವಾಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅವ್ರಂದ್ರು. ಏನಂದ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಕ್ಕಂತಂದೆ. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಕರೋನಾ ಆಗ್ಯದ ಅನ್ನಷ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮುಂದಲಿಂದ ನನಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮನೆಗೆ ಓಡೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮಕ್ಕ ಅಂದಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಬಲ್ ಮಾಡಬೇಡ ಈಗಲೇ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಅದು ಇದು ಕರೆಯೋದು ಮಾಡ್ತಾರ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಂದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮ್ಯಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಾಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡ್ದೆ. 2 ಗಂಟೆ ತನ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂತಾನೆ. ನಾನು ಗಂಟ್ಲದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಇತ್ತು, ಆಯಿಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂತಾನೆ ನಾನು ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗಷ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಎದ್ದು ಮ್ಯಾಗ ನನಗೆ ಹಿಂಗ ಅನ್ಸಿತ್ತು, ನನ್ಗೆ ಗಂಟ್ಲ ಬ್ಯಾನೇನೆ ಇಲ್ಲ. ಮನಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಅಂದಳು, ನೀನ್ ಜಲ್ದಿ ಎದ್ದಿದ್ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಳು. ಇಲ್ಲ, ನನಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಆಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಕಲ್ಗ ನನ್ಗ ಮಾತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬಂತು. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು. ಅವಾಗೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ಅವಾಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ದೇವ್ರದ್ದು ನಾನು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। और आज की इस आराधना में हम सारे लोग इकट्ठा होकर प्रभु के वचन को सुनने जा रहे हैं। और हमारे मेथोडिस्ट चर्च के कैलेंडर के हिसाब से हम फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम इसे क्रिश्चियन एजुकेशन वीक, नर्चर वीक के रूप में हम मनाते हैं। और हमारा टीचर्स डे हमने मनाया है। बट एट द सेम टाइम उसके साथ साथ पूरे सप्ताह जो है क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर वीक मनाते हैं। और इस बार हमारे लिए रेवरेंड प्रदीप आहाले सर, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है क्रिश्चियन एजुकेशन एंड नर्चर इस काउंसिल के, सो ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने अपने मैसेजेस को, अपने संदेशों को भेजे हैं। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उनके वीडियो को और उनके संदेशों को हम सुने। कई बार हम उनको फिजिकली बुला नहीं पाते थे, लेकिन ये एक माध्यम है, ऑनलाइन के द्वारा हम उनके वचन को सुने। और क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर वीक को मनाते हुए इस संडे को हम उस सेवा के लिए समर्पण करें। और क्रिश्चियन एजुकेशन नर्चर वीक क्या होता है, ये यही है कि हम जो बच्चों को संडे स्कूल वचन के अंदर पढ़ाना, यूथ लोगों को प्रभु के वचन के अंदर बढ़ाना, मेथोडिस्ट मैन को, WSCS को और पूरे चर्च के द्वारा कहीं ना कहीं बाइबल स्टडीज के अंदर, इस सभी बातों के अंदर लोगों को विश्वास में बढ़ाना है, इसका काम होता है। तो इनके द्वारा हम वचन को सुनेंगे। हमारे बीच में रेवरेंड प्रदीप आहाले सर, वो हमारे लिए वचन देंगे। आइए हम उन वचनों को सुनते हैं। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको सलाम। आपके पासवान और आपके पास्टेट कमेटी की सौजन्य से आज मैं आपके सामने वचन की सेवा के लिए खड़ा हूँ। मसीही शिक्षा रविवार के उपलक्ष्य में आज का ये संदेश है। और मसीही शिक्षा अष्टक का जो विषय है वह है विश्वास और भय। वर्तमान महामारी की परिस्थिति में जीवन की अनिश्चितता की चिंता हमें सताती है। और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति में हम पर इसका प्रभाव
विपरीत होना लाजमी है, लेकिन हम सबको एक बात की तरफ ध्यान देना ज़रूरी है कि हम कहाँ खड़े हैं। आपके सामने 3 शास्त्र पाठ पढ़े गए और स्तोत्र भजन संहिता 23वें अध्याय में हम पाते हैं कि भजनकार स्पष्ट रीति से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराइयों से होकर गुजरूं तो भी नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है, क्योंकि तू मेरे साथ है। यहोवा मेरी ओर है तो मैं किससे डरूं? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा? भजन संहिता 118:6 यही बात हमें कहती है। और यहोवा मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय रखूं? यह हम भजन संहिता 27:1 में पाते हैं। संपूर्ण भजन संहिता हम देखते हैं कि परमेश्वर की अच्छाई महानता की प्रशंसा से भरा हुआ है, क्योंकि ये भजनकार के अपने अनुभव के आधार पर उसने कही हुई बातें हैं और वो हमें हमारी हौसला अफजाई करते हुए हमें डर से बाहर निकालने के लिए कोशिश कर रहा है। परमेश्वर में हमारा विश्वास कैसा है? क्यों डर ने हमको घेर लिया है? क्यों हम उसके साए में पल रहे हैं? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास? शायद समस्या परमेश्वर में हमारे विश्वास के बारे में ही निश्चित है। और परमेश्वर में हमारा विश्वास किस तरह से है? क्या यह विश्वास तर्कसंगत है? यह विश्वास हमारी बुद्धिमत्ता पर आधारित है, या उन तथ्यों पर जो परमेश्वर के तथाकथित सेवकों द्वारा आपने और हमने सुना है? क्या परमेश्वर में हमारा विश्वास उसके दाग बाड़ी में सेवा करने वाले सेवकों के अनुभव पर आधारित है या हमारे निजी अनुभव पर? ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा परमेश्वर में विश्वास, इसका आधार हमें पता नहीं चलता, इसकी नींव हमें पता नहीं चलती, तब तक हम जब भी मृत्यु छाए की घाटी से गुजरेंगे, मृत्यु का डर हमें हर वक्त सताए रहेगा। और इसलिए भजन संहिता 23:4 में के पूर्वार्ध में भजनकार बयान करता है स्पष्ट रीति से कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी तराई से गुजरूं। जब भजनकार ऐसी बात करता है तो उसने इस बात को स्पष्ट रीति से जान लिया है कि जीवन की वास्तविकता स्पष्ट रूप से समझी है, स्वीकार की है कि हर व्यक्ति को बुराई या मृत्यु छाया की विभिन्न घाटियों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु मनुष्य के जन्म के द्वारा उसके जीवन में आया, मनुष्य के पतन के द्वारा उसके जीवन में आया, क्योंकि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को इस सृष्टि पर बनाया था तो रोज उनके साथ वो मुलाकात करता था और उन्हें भी उससे मिलने की आस रहती थी। लेकिन जिस दिन उनसे आज्ञा भंग हुआ, डर ने उन्हें घेर लिया और वो छुपने लगे, क्योंकि मृत्यु प्रविष्ट हो चुका था। परमेश्वर ने जैसे बताया था वैसे उनका मृत्यु निश्चित था। तो इस मृत्यु के डर से आप और हम आज भी प्रभावित है, और इसलिए हमें अपने विश्वास को सही ढंग से दृढ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। और इसलिए हम देखते हैं कि स्तोत्रकार भजनकार 23वें अध्याय के 4 पद में के उत्तरार्ध में कहता है कि मैं अगर तराई में से गुजरूं तो भी न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ऐसा लगता है कि भजनकार ने डर के भय को दूर कर दिया था
और वह इस वास्तविकता से पूरी तरह आश्वस्त था कि परमेश्वर उसकी जीवन यात्रा के दौरान उसका साथ हमेशा देगा। परमेश्वर उसके साथ क्यों है? क्योंकि समस्त मनुष्य प्राणी का पाप में पतन होने के बाद परमेश्वर ने इन चुने हुए लोगों को चुन लिया था, इन लोगों को चुन लिया था ताकि उनके द्वारा परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का उद्धार लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये आपस के झगड़े में मशगूल होने के कारण अपने दिए हुए मिशन को भूल चुके थे। तो परमेश्वर हमारे साथ इसलिए कि उसने दिया हुआ कार्य हम हर वक्त पूरा करें। मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उसका कार्य करते वक्त सताने वाले ढेर सारे होंगे। लेकिन हमारा विश्वास यही है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इस कार्य को करने के लिए हर एक को अपना खुद का सलीब उठाना जरूरी है। ये किस लिए? इसलिए कि मनुष्य को परमेश्वर का वचन समझे और उसमें अहम परिवर्तन आए, उसका स्वभाव बदल जाए। डर ने हमें इस तरह से घेर लिया है कि मौजूदा स्थिति में हम हर बात से डरते हैं। हमें दूसरों के द्वारा निराश होने का डर है, शायद व्यक्तिगत अपर्याप्तता या कमी की संदिग्धता, इसके बारे में हमें डर है कि हम विफल हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। संसार की इस विशाल प्रणाली में जहां लोगों को इंसान के बदले संख्याओं में गिना जाता है, उन असंख्य लोगों में गुम होने का डर, समाप्त होने का डर, इस संभावना से हम इतने प्रभावित हैं कि शायद असाध्य बीमारी आने का डर, असामयिक मृत्यु, अंतर्राष्ट्रीय तबाही, वित्तीय असुरक्षितता आदि सारी की आशंका में हम हर वक्त दबे हुए हैं, डरे हुए हैं। हमसे अधिकांश लोग तो आने वाली मृत्यु की निश्चितता से भी डरते हैं। आप और हम जानते हैं कि जब इंसान पैदा हुआ तो वो मृत्यु की तरफ जाता है। इस हकीकत को जानने के बावजूद भी आने वाली मृत्यु से हमें निराशा और विफलता मिलती है, क्योंकि शायद हमारी समस्या हमारा विश्वास प्रभु में, परमेश्वर में दृढ़ न होने के कारण है। तो परमेश्वर में दृढ़ विश्वास ही हमें सहायता देगा और डर से मुक्ति दिलाएगा। भजनकार 27 अध्याय के पहले पद के उत्तरार्ध में कहता है, यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। इसके अलावा हम देखते हैं कि भजनकार के जीवन में परमेश्वर का होना उसे मजबूती देता है, और इसलिए वो इस पद के पूर्वार्ध में कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है। परमेश्वर की ज्योति मेरे साथ है तो सारी बातें स्पष्ट है, डरावनी बातें भी सामने आएगी, लेकिन दृढ़ विश्वास ये है कि परमेश्वर मेरे साथ हमेशा है। और इसलिए हम देखते हैं कि भजनकार 119-105 में उसने लिखा है कि उसका वचन मेरे पैरों के लिए दीपक है और हमारे हर पथ का प्रकाश है। परमेश्वर का वचन हमें मार्ग दिखाता है और हमारे जीवन के हर परिस्थिति में वो हमारे साथ है, उद्धार करने वाला हमारे साथ है, इससे आश्वस्त करता है। भजनकार ने अनिश्चित भविष्य का सामना परमेश्वर की स्थायी उपस्थिति में स्थिर आत्मविश्वास के साथ किया, क्योंकि वह निश्चित था कि परमेश्वर हमेशा अनिश्चितता के भय से मुक्ति दिलाने के लिए उसके साथ मौजूद है। जब हम नए नियम की तरफ आते तो पौलुस के जीवन को हम देखते हैं। पौलुस ने भी डर के ऊपर विजय प्राप्त की थी। यहाँ हम देखते हैं कि पौलुस एक ज्ञानी आदमी था और खुद पुनरुत्थित यीशु ने
उसे अपना चेला बल के चुना था। जो लोगों को सताता था उसको परमेश्वर ने उन्हीं विदेशियों के लिए उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए चुन लिया है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। प्रेरितों के काम इसके 18वें अध्याय के 9 और 10 पद में परमेश्वर उसे जब दर्शन देता है तो उसको कहता है कि प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, डर मत, वरन कहते जा और चुप मत बैठ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और ये खुद यीशु के द्वारा उसे दी गई आश्वासन के वजह से हम देखते हैं कि पूरी उपएशियाई उपखंड में हम देखते हैं कि पौलुस के द्वारा कई कलीसियां बनाई गई, की गई। हम पाते हैं कि पौलुस जब हाउस अरेस्ट में था, उसको कैद किया गया था, तो उसको अपने भविष्य की अनिश्चितता से कोई चिंता न थी। मृत्यु उसको आएगा तो इसका डर नहीं था। इसके बजाय उसे चिंता थी तो इफिसुस, फिलिपुस और कोलोसी यहाँ की सभाओं की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में उसे चिंता थी। और उस कैद खाने में अपने घर ही के बैठकर उसने उनको खत लिखे, उनकी हौसला अफजाई की और उनको मार्गदर्शन किया, क्योंकि मृत्यु का भय उसे भी सताने के लिए नहीं था। इसलिए वो उसने फिलिपुस के पत्री 1 अध्याय 21वें वचन में स्पष्ट रीति से कहा है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। ये सारी सच्चाई आप और हम जानते हैं। हम अपनी तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं? जब हम देखते हैं कि पुराने नियम से भजनकार और नए नियम से हम देखते हैं कि पौलुस, इसी पुराने नियम में यीशु के भविष्यवाणी की गई थी कि कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसको इमैनुएल यानी हमारे साथ परमेश्वर ये रहेगा, इसके बारे में बताया गया है। यीशु का जीवन हम पाते, उसके माता पिता को परमेश्वर के द्वारा मार्गदर्शन किया गया, चुना गया। और फिर हम देखते हैं इन्होंने बचपन से लेकर, मतलब यीशु पैदा होने से लेकर सारे मार्गदर्शन, शिक्षण, विश्वास उसे दिलाते गए। इसलिए हम देखते हैं कि यीशु जब अपने विश्वास में परिपक्व हुआ तो उसके मन में मृत्यु का डर कभी नहीं था। वो जिस कार्य से आया था वो कार्य था लोगों को सुशिक्षित करना। इसलिए यीशु को हम देखते पुराने नए नियम में रब्बी कहा जाता था, गुरुजी कहा जाता था, सिखाता था। इसलिए कि सीखने के बाद हम समझ पाए, समझने के बाद हम में परिवर्तन लाए, परिवर्तन आने के बाद हम दृढ़ विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चले रहे और आगे बढ़े। यीशु खुद को, उसको भी कभी मृत्यु का डर नहीं सताया। उसको जब वो सलीब पर था, मृत्यु के जबड़े में था, तब भी उसको लोगों की चिंता थी। उनके उद्धार के लिए ही वो प्रार्थना कर रहा था। एक वाक्य आया जब उसने कहा कि मेरे पिता, तूने मुझे मेरा त्याग क्यों किया? क्योंकि आपका और हमारा पापी जीवन उसने लिया था, इसलिए परमेश्वर ने अपना मुख उससे फेर लिया। भले परमेश्वर ने उसका मुख यीशु से फेर लिया था, लेकिन ऐसा यीशु सच्चाई जानता था। और इसलिए आखिरी शब्द में वो कहता है कि मैं मेरी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इस तरह से हम देखते हैं इन सब के जीवन के द्वारा, जिनके जीवन में भय कभी नहीं था, सबका परमेश्वर पिता पर दृढ़ विश्वास था। और इसी विश्वास के बलबूते पर आपको और हमको आगे बढ़ना है। इसलिए रोमियो की पत्री 15:13 में पौलुस कहता है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में पूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा
बढ़ती जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा बाप आसमानी, हम तेरी शुक्रगुजार है तेरे अनेक आशीषों के लिए जो तो हम पर उंडेलता है। तेरे वचन के द्वारा तूने हमारे अगुवाई की कि भय के ऊपर विजय हम तभी पाएंगे जब हमारा तुझ में दृढ़ विश्वास होगा। इस विश्वास को पाने के लिए, इसकी नींव सही ढंग से रखने के लिए हमारी सहायता कर, ताकि तू हमेशा हम अपने जीवन में तुझे मौजूद पाए और तेरे अनुभव से हम निर्भीड़ होकर तेरे कार्य में, दिव्य सेवकाई में उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहे। हमारा विश्वास तुझ में दृढ़ करने के लिए हमारी सहायता कर। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू रेवरेंड प्रदीप हाले सर, आपके इन वचनों के लिए जो आपने हमें दी हैं, और फिर एक बार उनको हमारी कलीसिया की ओर से हम धन्यवाद देते हैं। सभी के लिए अनाउंसमेंट्स। हमारा संडे सर्विस जो है 11 बजे चलाया जाएगा, और संडे स्कूल हमारे वीक में ऑनलाइन व्हाट्सएप वीडियोस के द्वारा चलाया जाएगा। वेडनेसडे सर्विस 8 बजे बुधवार के दिन, MYF और TCF संडे शाम को 6 बजे, फ्राइडे के दिन टीन्स फेलोशिप 7 बजे, बाइबल स्टडी सैटरडे 7 बजे। ये तीनों दिन जो है हमारी जूम ऑनलाइन पर शाम को चलाए जाएगी, और हमारा चेन प्रेयर जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसी में बने रहेंगे। और आप लोग अपने फैमिली प्रेयर में जो हम रोज आपके लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, इन सारी बातों के लिए आप प्रेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और उसी तरह से जो है कुछ अनाउंसमेंट्स में देना चाहता हूँ आज के दिन। हमारा लॉकडाउन तो खुल चुका है, अनलॉक 4 वी हैव बिगन, ये चालू हो चुका है। अभी हम सभी लोगों को पता है कि 6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस और इन सारी बातों को लाकर हमें ये बताया है कि हम किस तरह से कोरोना वायरस से हमें बचा कर रखना है। ऑफ कोर्स काफ़ी हम ट्रेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इस समय आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब जो है अगर आप कोविड-19 के केसेस को देखते हैं, हमारे एरिया में तो कम है, लेकिन और बाकी सब जो है बढ़ते जा रहा है। और हर दिन जो है पिछले न्यूज़ में हम लोग सुना है कि एक 11 दिनों के अंदर 1 मिलियन हैज इंक्रीज। सिर्फ 11 दिनों के अंदर 1 मिलियन मतलब 10 लाख, हर एक दिन 1 लाख लोगों के आसपास ये इन्फेक्ट हो रहे हैं। क्यों बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, वी डू नॉट नो, बट इतना कह सकते हैं कि अब गवर्नमेंट ने प्रयास कर दिया है, उन्होंने सिखा दिया है हमें, मेडिकल की ओर से उन्होंने हमें बता दिया है, पुलिस लोग हम लोगों के ऊपर पाबंदी लगाकर हमें कर दिए हैं। लेकिन अब आगे अगर जो कुछ भी होगा तो ये मेरी और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसीलिए सारे ट्रेंड होने के बाद मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अब हम ये सारी बातों को अब सीखें और इस कोविड-19 से हम बचे रहे। पहला तो एक बात है कि कोविड-19 का वैक्सीन नहीं निकला है अभी तक, तो इससे बचना हमें मुश्किल है। बाहर हम जब जाते हैं तो इससे प्रोटेक्शन करना हमारा काम है, इससे बचकर रहना हमारा काम है। तो कैसे रहे, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए। आप लोग जो भी चीज़ें आप खान पान करते हैं ये सारी बातों के अंदर ये रखें। पहली बात ये है कि रोज आप लोग जो काढ़ा पीते हैं, कुछ लोग इसको पीना आप आदत रखें। गर्म पानी पीने का आदत रखें। बाहर खाने का आप मत खाइए जब तक और दिन जो है पूरी तरह से खुलते नहीं है। डोंट ईट आउटसाइड, ये सारी बातों का ध्यान रखें। और जब भी आप बाहर निकलेंगे मास्क पहनना भूलें मत। प्लीज वेयर योर मास्क। ऐसा लगता है कि अनलॉक हो चुका है, सब लोग फ्री घूम रहे हैं, डोंट वरी अबाउट अदर्स, दूसरे लोग घूम रहे हैं तो घूमने दीजिए, लेकिन आप लोग मास्क पहनना भूलिए मत। रोज मास्क हम खरीद नहीं सकते, पता है, कपड़े का मास्क आप लोग बना सकते हैं, मार्केट में भी मिलता है, 30 रुपये 40 रुपये कपड़े का मास्क मिल रहा है, उसको लीजिए, वही यूज़ कीजिए, अच्छे से धोइए, फिर से वापस वही पहने। मास्क पहनना ज़रूरी है, सैनिटाइजेशन, वॉशिंग हैंड्स, ये सब चीज़ें जो है वापस से जरूरी है। इट इज़ ऑल अगेन, मैं कहना चाहूँगा ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अभी अपने आप को बचाना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और इसे आप बरकरार रखिए। ये मत सोचिए कि सब हो चुका है कहकर। इन अनलॉक जैसा हो रहा है वैसे ही फिर से अपने आप को बचाने के लिए आप लोग प्रयास करें। सो प्लीज डू नॉट नेग्लेक्ट दिस, प्लीज टेक ऑल द रिस्ट्रिक्शन जो भी आप लोगों को जरूरत है।
जो हमारे लिए जरूरी है, ये सारी बातों को आप मानते रहे। सो परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक आखिरी प्रार्थना और परमेश्वर के गीत को गाकर हम आशीष वचन को लेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमें दी है। विशेष तौर से प्रिय परमेश्वर, हम आपके वचन के अंदर बढ़ना है। क्रिश्चियन एजुकेशन, इन सारी बातों को लेकर हमें सीखना है। इन वचनों को पिता दिए हुए अय्या के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष दे। और पिता परमेश्वर, जैसे जैसे अनलॉक हुआ है, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं पिता, तो इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी सुरक्षा बनकर आप हमें चलाए, और जो भी रिस्ट्रिक्शंस हमें पालने हैं उसे पालने के लिए आप हमें सहायता करें। प्रभु, हम सभी को आपकी आशीष अनुग्रह से भरकर चलाने के लिए, और विशेष तौर से जो भी भेंट हम अर्पण किए हैं उस भेंट को भी आप आशीष देने के लिए, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से हम मांगते पिता, आमीन। हे देव्यावा ದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾಬಾದಲೇನು ಕೊಡುವೆ ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾವತು ಕೊಟ್ಟಾಗ್ಯೋ ಏನು ಸಾಲದು ಆಮೆನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೇಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿರಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್. भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा बीमारियों में। तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई
बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए